Okay, this is a very special video for all of those who are struggling for a long time for IELTS academic reading. So this is a very important question which is related to IELTS reading, true, false, not given. Mostly students face some problems in true, false, not given and matching headings. These are the two categories of questions mostly students face problems. So this question portion has been given from the IELTS academic book number 16 test 3. So these are the 5 questions. So we will deal these 5 questions one by one. If we look at the question number 1, that is the Roman shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians. So first thing that is very important for all of those is that we should underline the keywords of these words of this question. What are the keywords of this question? Roman shipbuilding. This is a keyword, right? Roman shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians. Greeks and Egyptian, this is another keyword, right? Next, this word. This is a question. So first thing is to take your books and come to the book page number, that is 61. That is, shipbuilding today is based on science and ships are built using computers and sophisticated tools. Shipbuilding in ancient Rome, however, was more of art, relying on estimation, inherited techniques, and personal experience. The Romans were not traditionally sailors, but most land-based people who learned to build. So this, our answer is started from here. The Roman were not traditionally sailors. कि रोमन जो थे वो रवायती तौर पे सेलर्स नहीं थे, बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल, बल्कि जमीन पे रहने वाले लोग थे, वो कश्तियां वगैरह नहीं चलाते थे. who learned to build ships from the people that were conquered, namely the Greeks and the Egyptians. So सबसे पहले the thing is that कि आपने उस जगह पे पहुंचना है. मोस्टली स्टूडेंट वहां से जाकर प्रॉब्लम करते हैं कि उनको अपनी जगह नहीं मिलती जहां से उनका आंसर छुपा हुआ है. सो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पकड़ना और उसके कीवर्ड को आपने अंडरलाइन कर लेना और फिर उसके क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन कर लेना है. जैसे मैंने आपके सामने किया, ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है. हमें रोमन शिप बिल्डिंग आ गया, हाँ जी ये इसमें है रोमन शिप बिल्डिंग, और उसके बाद ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस भी हमें मिल गया, ये भी कीवर्ड आ गया. अब हमने ये ढूंढना है कि क्या रोमन शिप बिल्डिंग जो थे, रोमन जो लोग थे, उनको ग्रीक्स उन्होंने ग्रीक्स और इजिप्शियन से ये स्किल सीखी थी शिप बनाने की, ठीक है, बैरी जहाज बनाने की जो टेक्निक थी वो उन्होंने ग्रीक्स और इजिप्शियन से सीखी थी. ये हमारा पास्ट ऑन उनसे आई थी उससे. अब हम देखते हैं इसको. आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है जी. अगर आप देखें, who learned to build ships from the people they conquered, namely the Greeks and the Egyptian. हाँ जी, यहाँ पे ये है कि were passed on. The Roman shipbuilding skills were passed on. रोमन शिपबिल्डिंग को पास की गई, यानी रोमन को दी गई ग्रीक्स और इजिप्शियन की तरफ से शिप बिल्डिंग. यहां पे ये है कि रोमन ने इनको दी,
रोमन को इन्होंने दी, रोमन ने इनको ग्रीक्स और इजिप्शियन को दी, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो थिंग इज दैट कि आप सबसे पहले कीवर्ड पे पहुंचे, उसके बाद क्वेश्चन आप देख लें कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, और उस क्वेश्चन को आप फौरी स्कैन और स्किमिंग के टेक्निक के साथ, जैसे कि मैंने आपको टेक्निक सिखाई हुई है, दैट इज वेरी सिंपल टेक्निक, दैट हाउ यू कैन रीच at the exact points that where your answer is. Next question is, skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixed planks. So अब यहां पे भी हम देखेंगे कि स्किल हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर नीडेड फॉर द मोर्टाइज, ये हो गया कीवर्ड आपका, और एक ये हो गया कीवर्ड आपका। वर नीडेड ये क्वेश्चन है जी इसका आपका। So skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks. Planks basically ये एक तख्ता होता है जो कि कश्तियों के पीछे लगाया जाता है। लकड़ी की पहले कश्तियां बनाई जाती थी, तो उसके हिसाब से ये लिखा गया है। So अब हम इसको आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं देयर आर अ फ्यू सर्वाइविंग रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये सारा अगर आप गौर करते जाए तो हमें अब आपने तेजी से चलना है, आपके ज़हन में ये सारी चीजें हैं। स्किल्ड क्राफ्टमैन नहीं बात आई अभी, मोनेटाइज एंड टैलेंट स्ट्रेंथ नहीं बात आई अभी, तो आपने बड़ी तेजी से अपनी उंगली फेरते हुए अपनी असल जगह पे पहुंचाना है, जो कि आपको 5वीं 6ठी लाइन से शुरू होते मिलेंगे, सॉरी 4थी लाइन से। यहां पे हम देखते हैं जी, प्लैंक्स जहां से 4थी लाइन खत्म होती है, नजर आ गया आपको। प्लैंक्स यूज्ड टू बिल्ड द आउटर होल, सॉरी इससे ऊपर से शुरू करते हैं। देयर आर फ्यू सर्वाइविंग रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट वर डिस्क्रिप्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंशिएंट रोमन ships, including the sails and rigging, executive vessels, and provide some other ancient shipbuilding techniques. The studies of these have taught in the ancient Rome's shipbuilders, but the outer hull first, then proceed with the frame and the ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है जी। Planks used to build the outer hull were initially sewn together starting from the 6th century BCE. They were fixed using a method called mortise and tenon. Yes, ये हमारी बात यहाँ पे पहुंच जाए। Where one plank locked into another without the need for stitching. ठीक हो गया। अब हमें स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बात भी मिल गई और mortise and tenon method of fixing planks की भी बात हो गई। अब जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो था वर नीडेड। ये हमें किसी जगह पे यहाँ पे नहीं मिला। अगर हम इसको दोबारा देखें तो हमें पता चल जाता है कि प्लैंक्स यूज्ड टू बिल्ड द आउटर हॉल, कि प्लैंक्स जो थे वो कश्ती का बाहर वाला हिस्सा बनाने में काम आते थे, और इनिशियली sewn together, उनको इकट्ठा जोड़ा जाता था शुरू में, स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th century, and were fixed using a method mortise where one plank locked into another without the need for stitching. तो बगैर स्टिचिंग किए हुए, कोई टांके वगैरह लगाए, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के उन फट्टों को तो काम लिया जाता था। अब यहाँ पे वर नीडेड की कोई जरूरत यानी बात नहीं की गई, अगर हम गौर करें तो ये नॉट गिवन होगा हमारे लिए। नो, कम फॉरवर्ड, नो क्वेश्चन इज समन आप बताएंगे। द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame. अब इस पूरे क्वेश्चन में से कीवर्ड्स किसको लेती हैं, क्वेश्चन क्या बनाती हैं, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? सर एक मुझे लग रहा है लेटर प्रैक्टिस जो यूज की थी मेडिटेरियन शिपबिल्डर्स ने। हाँ, प्रैक्टिस यूज्ड बाय मेडिटेरियन शिपबिल्डर्स, ठीक है। बिल्डिंग द हल, हाँ जी। अब बिल्डिंग द हॉल बिफोर द फ्रेम, ये क्वेश्चन होगा इसका जी, ये हो जाएगा कीवर्ड, ये होगा इसका क्वेश्चन। क्या है?
द लेटर प्रैक्टिस, बाद की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या था कि मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स जो थे वो फ्रेम से पहले हॉल को बना लेते थे, उसमें इन्वॉल्व थे बाद की प्रैक्टिस में। ये भी क्वेश्चन के हिस्से में बात ये भी क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। अब आप आ जाए यहाँ पे अपने पीछे और इसमें देखें कि इससे नीचे आए तो हमें नजर आएगा मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स, नजर आ गया जी। उससे नीचे मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स शिफ्टेड टू अनदर शिप बिल्डिंग मेथड स्टिल इन यूज टुडे, कि मेडिटेरियन ने कश्तियां बनाने का जो एक तरीका था वो राइज किया जो कि आज तक चल रहा है, विच कंसिस्टेड ऑफ बिल्डिंग द फ्रेम फर्स्ट एंड देन प्रोसीडिंग विद द हॉल एंड द अदर component of the ship. This method was more systematic and dramatic, shortened ship construction times. अब अगर हम इसमें देखें कि बाद वाली प्रैक्टिस में जो मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स थे उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें पहले फ्रेम बिल्डिंग द हॉल बिफोर द फ्रेम, यानी फ्रेम से पहले हॉल को किया जाता था। अगर हम इसको देखें फर्स्ट एंड देन प्रोसीडिंग विद द हॉल, हाँ जी, यानी हॉल पहले होता था, प्रोसीडिंग का मतलब होता है यानी किसी चीज का पहले होना और उसके बाद फ्रेम का होना। अब इसको, इस स्टेटमेंट को हमारी जो पैसेज की स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, उल्टा आ रही है इसके, ठीक है। और जाहिर है जब कुछ चीज कंट्राडिक्ट कर रही हो, उल्टा आ रही हो, तो वो डेफिनेटली फॉल्स होती है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। अब नंबर 4 पे हम आए तो फरीद आप इसको देखिएगा जरा। द रोमन कॉल द मेडिटेरियन सी mere nostrum because they dominated its use. अब आप क्या समझते हैं कि इसमें कीवर्ड्स क्या होने चाहिए और इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सर इसमें आई थिंक जो है ना इसके कीवर्ड्स वो है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरियन सी में, ठीक है, ये सारे का सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कीवर्ड होंगे इसके। और इसका क्वेश्चन क्या होगा? The Roman called the Mediterranean Sea mere nostrum because they dominated its use. Dominated its use, ये इसका क्वेश्चन होगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपना क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात जब आप क्वेश्चन को समझे बगैर अपने पैसेज में से उसको समझ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे 70% स्टूडेंट क्वेश्चन को प्रॉपर समझे बगैर उसका पैसेज पे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं इवेंचुअली। तो उसमें बिकॉज ये इसका क्वेश्चन होगा। अब आप देखेंगे ये एक वर्ड है जी, डोमिनेटेड। The Romans called the Mediterranean Sea mere nostrum because that dominated its use. क्योंकि उन्होंने इस समंदर पर डोमिनेट कर लिया था, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था। अब हम इसके पीछे पैसेज पे आ जाते हैं और अगर हम इसको करें अगले पैराग्राफ से, और कीवर्ड मैं आपको थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊं कि ट्रू फॉल्स डॉट गिवन में सारे क्वेश्चन जो हैं वो अरेंज किए हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो पैसेज नंबर 1 पे हो और दूसरा क्वेश्चन जो है वो या पहला क्वेश्चन जो है वो पैसेज पैराग्राफ नंबर 3 पे हो और दूसरा जो है वो पैराग्राफ नंबर 1 पे हो। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तरतीब के साथ होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू लर्न। उसके बाद आप आ जाए जी इसमें अगले पे नीचे
अगला पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ से, वारशिप्स वर बिल्ट टू द लाइट। यहाँ से हम अगर इसको बड़ी तेजी के साथ स्कैन करते 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 इसी पैराग्राफ की दूसरी सेकंड लास्ट लाइन पे आए ना, तो हमें मिल जाता है कि इवेंचुअली, दूसरी लाइन, सेकंड लाइन, इवेंचुअली रोम्स नेवी बिकेम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन द मेडिटेरियन। के जो रोम की नेवी जो थी ना, नेवी जो फौज होती है इनकी, नेवी की नेवी, वो बहुत बड़ी बन गई और ताकतवर बन गई। मेडिटेरियन बेसिकली ये एक समंदर है, ठीक है। एंड द रोमन हैड कंट्रोल ओवर, ये है जी आपका डोमिनेट करना। एंड द रोमन हैड कंट्रोल ओवर व्हाट दे therefore called mere nostris, meaning और सी। ये जब एक इटालियन नाम है, ये वाला जो है, ये वाला मेयर नोस्ट्रूम, इसका मतलब क्या है? हमारा समंदर, हमारा समंदर। ये एक इटली का वर्ड है, इटालियन लैंग्वेज का, ठीक है। और रोमन शुरू से ही अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं। ये जो इटली वाले हैं, इटली का पुराना नाम रोम था, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि रोमन जो थे वो उस समंदर पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था, डोमिनेट हो गए थे। इसका मतलब है कि डोमिनेट, हमें एक क्वेश्चन मिल गया, एक की क्वेश्चन वर्ड मिल गया और उसको हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। सो हमें कितना टाइम लगा अपने आंसर पे पहुंचने पे अगर हम इस टेक्निक को यूज करें? सो दैट इज वेरी सिंपल। कि आप एक बात तो करें, कल कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे आप लोगों ने किया था और उस पर काफी टाइम लगा दिया था, शायद 30 सवाल किए थे, ज्यादा टाइम आपका लग गया था। तो दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि वहां पे आपको पास सिर्फ 1 घंटा होता है, जिसमें से आपने 55 मिनट जो है वो अपने मतलब क्वेश्चंस पे लगाने होते हैं, 5 मिनट आपने अपने आंसर शिफ्ट करने होते हैं क्वेश्चन शीट पे, आंसर शीट पे। तो अब ये हमारा जो है वो हो जाएगा ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट रोवर्स ऑन शिप्स वर पीपल फ्रॉम द रोमन आर्मी। यहां पे मोस्ट रोवर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है जी, फ्रॉम द रोमन आर्मी। ये होगा कीवर्ड इसका। यानी ज्यादातर जो शिप में लोग होते थे वो रोमन आर्मी से हुआ करते थे। ये उसकी ट्रांसलेशन है अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में करें। सो दैट इज वेरी सिंपल। अब हम इसी को पैराग्राफ नंबर 4 पे देखते हैं कि क्या इसमें हमें मिल जाएगा। अगर हम रोमन आर्मी का देखें, किस जगह पे जिक्र है, आर्मी हो गया, मिलिट्री हो गया, कोई इस तरह का वर्ड होगा। और ये हमें, अगर हम नंबर 4 पैराग्राफ को पढ़ते जाए तो इसके लास्ट पे, सेकंड लास्ट लाइन पे हमें मिलेगा। अगर हम देखें इससे ऊपर, अगर हम शुरू करें नंबर तीसरी जो लाइन है नीचे से ऊपर, इट इज वर्थ नोटिंग दैट कंट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शन रोवर्स वर नॉट स्लेव्स। रोवर्स जो थे वो स्लेव्स नहीं थे, गुलाम नहीं थे, बट मोस्टली रोमन सिटीजन्स enrolled in the military. So that is very clear answer. यानी जो शिप में लोग होते थे वो स्लेव्स नहीं होते थे, गुलाम नहीं होते थे, बल्कि वो रोमन सिटीजन होते थे और उनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो मिलिट्री, रोमन मिलिट्री से बिलोंग करते थे। तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर हम इसको देखें तो हमें बड़ी इजीली हमने 4 पैराग्राफ्स को समझ लिया और उनको अच्छे तरीके से हमने उसको कर लिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो ट्रू होगी। सो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने में टाइम लगा देते हैं। मुझे जो समझ आई है वो तो यही है कि ना सिर्फ ना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बट for other questions also reading, because reading is one of the toughest and trickiest module in IELTS
जितने भी उसके मॉड्यूल्स हैं उनमें से. So this was the very important point which I have described before you. Hopefully you will enjoy and uh, you have learned a lot about this video. Thank you very much.